Hello friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing society. जैसे आज का टॉपिक है लिफ्ट की कानून। लिफ्ट गिर जाती है, लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। आप गूगल करेंगे तो काफी इंसिडेंसेस मीट दिखाई देंगी आपको। आज का वेबिनार मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी मेंबर्स के लिए beneficial है। It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and much more will be added as and when time permits. This Lift Law Reform Committee is formed for purpose of bringing necessary legal reforms by filing a writ petition or PIL in Mumbai High Court, Bombay High Court. Everybody is invited to provide their experiences, expert opinion, technical guidance, which will form the base for filing a petition or PIL in High Court. We have also created a group only for lift laws related matters, wherein lift committee discussion shall be done on legalities and difficulties, problems faced in cooperative housing society. Anybody wishing to send me a private WhatsApp message on 9820144108. We have invited lawyers, technical experts, architects, electrical and electronic engineers, lift users, affected persons, AMC vendors, AMC contractors, lift manufacturers. All are invited for discussions on various necessary reforms that are needed in building lift laws. हम सभी लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं, हम सभी अफेक्टेड है। मुंबई में अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा लिफ्ट्स असेंबल्ड है, इलीगल है और अनलाइसेंस्ड है। उनको लाइसेंस भी नहीं, ऑपरेटिंग लाइसेंस भी नहीं हुआ है। Topic we will be discussing topic wise on this webinar. One of the topic is today's, that is policy making. Next topic will be lift safety measures. Next topic will be legalities. After that, there will be topic of accident insurance and others, or relating only to lifts in society buildings. The essence of this discussion shall form base for filing PIL or writ petition in High Court. This will be done under the presidency of our committee president and social activist, Mr. Mohammad Afzal. I have already provided you his phone number and email in our website invite as well. I now invite Mr. Mohammad Afzal to give his feedback before we call in people for their opinions and suggestions. Thank you, Mr. Mohammad Afzal. You are welcome. Please go ahead. Thank you, sir. Hemanji, thank you very much for giving me this platform to come out with something which is very dear to me and the safety point of view for each and every citizen of this entire country. Before I start, I would like to give you a certain background. I have been working on this lift issue for the last, say, about 15 to 18 years. And I had filed a public interest litigation in the year 2010. And जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सीडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कई किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, मगर इन कंपैरिजन टू दोज एक्सीडेंट्स, लिफ्ट एक्सीडेंट्स आर फार फ्यू. बट मेरा कहने का मतलब ये था कि वी कैन नॉट क्वांटिफाई ह्यूमन लाइफ. एवरी सिंगल लाइफ मैटर्स. तो ये कॉन्सेप्ट को लेके आई हैड अप्रोच्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट और वहां पे there were few demands that I had kept. One is elevator safety, lift inspection. वहां पे हमारी ये डिमांड थी कि भाई अगर वो TWD अगर इंस्पेक्शन कैरी आउट नहीं कर पाती है तो आउटसोर्स किया जाए लिफ्ट इंस्पेक्शन. सेकेंड वाज टू अपडेट द वेबसाइट सिटी वाइज अक्रॉस महाराष्ट्र. जितने भी लिफ्ट इंस्पेक्शंस होते हैं, जितने भी फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सारे डिटेल होने चाहिए. कौन से इंस्पेक्टर ने कौन से बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया और एज पर द
Section 11 of the Bombay Lift Act, it was mandatory on the part of the PWD to inspect the lift twice in each year. अगर हम 2010 की बात करें तो उस वक्त की लिफ्ट की संख्या थी 86,154 लिफ्ट्स अक्रॉस महाराष्ट्र, और ये हम मान के चलते हैं कि एवरी ईयर 5 से 6,000 लिफ्ट ऐड होती। तो अगर हम इसको कहते हैं कि साल में अगर 2 बार इंस्पेक्शन होनी है तो इट ट्रांसलेट्स इनटू 1,72,000 इन ऑड इंस्पेक्शंस अक्रॉस महाराष्ट्र। अब 1,72,000 लिफ्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए the PWD had only 16 engineers. So my contention was कि it is humanly not possible कि लिफ्ट का इंस्पेक्शन किया जाए और इतने तादाद में किया जाए। इसके अलावा मेरा ये था तथ्य कि हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को भी रखें सामने, हम ये भी रखें कि जो मैनेजिंग कमिटी है और जो लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि क्या हो जाता है, जो मैन्युफैक्चरर है एक दफा उन्होंने इंस्पेक्शन करके उन्होंने सर्टिफाई कर दिया, जो भी देखरेख होती है लिफ्ट की वो ओनर्स के हाथ में आ जाती है, विच इज द मैनेजिंग कमिटी ऑफ अ प्राइवेट बॉडी, अ कॉर्पोरेट बॉडी और अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और उसके पश्चात जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो सही ढंग से इसका इंस्पेक्शन करें। तो ये सारे चीजों को लेके मैंने ये पाया कि लिफ्ट इंस्पेक्शन हो नहीं रही है, अगर हो रही है तो सही ढंग से नहीं हो रही है, और मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये पाया गया कि भाई देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड ऑन एनीबॉडी। दे यूज अ टेक्निकल टर्म कि भाई इट वाज एन एक्सीडेंटल इंसिडेंट और बस उसके वजह से हुए, तो देयर वाज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड ऑन एनीबॉडी। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि एवरी पर्सन हु इज ट्रैवलिंग इन अ लिफ्ट इज इन डेंजर। तो ब्रॉडली जो है वो ये था, इसके वजह से हमने पीआईएल फाइल की थी। पीआईएल फाइल करने के बाद बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स भी हुए, उसमें कुछ प्रेज हमारे मांग पूरी की गई, जैसे कि लिफ्ट इंस्पेक्शन हैज टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट पोस्ट 2012 सिटी वाइज अक्रॉस महाराष्ट्र। अगर आप पीडब्ल्यूडी के प्रोवाइडेड लिंक पे अगर आप जाते हैं आज के तारीख में भी, तो कौन से बिल्डिंग को उन्होंने इंस्पेक्शन किया, किस इंस्पेक्टर ने किया, कब किया, फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट्स, और तमाम जो जो डिटेल्स वेबसाइट में अपलोड हुए थे, आई वाज 100% सेटिस्फाइड कि ये बहुत सही तरीका है। लेट्स गो फर्दर। जब आगे बढ़ के जब 2015 में 24 अप्रैल 2015 में PWD and Energy Department separated. Energy Department is the lift division. तो PWD का 2015 से कोई लेना देना नहीं है। 2015 से Energy Department will undertake all the inspection city wise across Maharashtra. अब कैसा है कि हाई कोर्ट ने मुझे कहा था कि I can come back to them with a fresh PIL, और जो भी उसमें नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं या कोई पॉलिसी डिसीजंस हो या कोई भी चीज हो, उस चीज को लेके हम हमारा तत्व रख सकते हैं कोर्ट के सामने, और अकॉर्डिंगली द डिसीजंस विल बी टेकन। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब 2011 में ओल्ड बिल्डिंग के जितने भी लिफ्ट्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने हैं, ऑलरेडी दिल्ली में तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिलीज कर दिया, तो उसी को फॉलो कर लें। उसी के बेस के ऊपर अगर बॉम्बे में करना है कुछ लीगल तो वो कर सकते हैं। ठीक है। और जहां तक अभी ये अरुण सर बोल रहे थे कि पुरानी बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने के लिए प्रोविजंस को थोड़ा कम करें, मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा ना करें सेफ्टी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिफ्ट तो सेम ही है, वो चाहे आप पुरानी बिल्डिंग में लगाओ या नया लगाओ, हम लिफ्ट मैन्युफैक्चरर के लिए उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपको लग रहा है कि वो बिल्डिंग आपकी पुरानी है, लिफ्ट तो नया ही लगेगा। नहीं सर, तो मेरा हिसाब से जो चेंजेस लाने वाले जो प्रपोज चेंजेस है सर, कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है, ना आएंगे चेंजेस, क्योंकि चेंजेस जो हैं वो BIS से आएंगे, और BIS का नया कोड ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुका, मतलब फाइनल होके अप्रूव हो चुका। वो सिर्फ गवर्नमेंट में एक प्रोविजन है कि नोटिफिकेशन होता है किसी भी चीज का,
जैसे अफजल साहब बता रहे थे कि बॉम्बे में नया लिफ्ट एक्ट बना है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो बना बनाया बेकार है। ऐसे ही ये कोड बन के रेडी है, नोटिफिकेशन होना बाकी है, हो जाएगा। तो अब कोई चेंज होने वाला नहीं है। कोई भी लिफ्ट बॉडी ऐसी नहीं है इंडिया के अंदर जो बीआईएस के आगे जाके कोई नया रूल बना लेगी। No, sir. I was referring to, like, say, the proposals which are put, like, yeah, all lifts should be stretcher size. It is not possible, maybe in old building, to have a stretcher size lift in the space available, you know. But if we नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रपोजल था ना, एक अभी जस्ट डिस्कस हो रहा था कुछ सर मैं वही बोल रहा हूँ, वो हो ही नहीं सकता। अगर बीआईएस में नहीं है तो नहीं होगा, आप गारंटी मानिए उस बात का। और अभी हम लोगों ने भी फॉलो अप किया है, हम लोग बात कर रहे हैं बीआईएस की जो प्रॉब्लम है। बीआईएस का प्रॉब्लम क्या है कि इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्टेट्स। अगर लिफ्ट एक्ट में उसको कंप्लाई करके प्रोविजन किया है तो ही मैंडेटरी होगा, जैसे हरियाणा में किया है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से कि इसको वन एक्ट, वन नेशन वन एक्ट, ये हमारा उसमें हमने डाला है। अगर एक एक्ट बना दें सेंट्रल से तो सारी स्टेट में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। Okay, thank you, Mr. Arun Agarwal, and thank you, Mr. Arun. We will take in the next query. Hemant ji, Yes, yes, sir. I just wanted, I had a question with Arun Agarwal ji. Please go ahead, sir. Afzal, as per the available information, the PW, the Energy Department says that every 20 years the lift has to be changed totally. But बॉम्बे में ऐसे भी जगह है जहाँ पे लिफ्ट 50 साल पुरानी भी है, 60 साल पुरानी भी है। तो इसको कैसे, आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। सर रूल, उन्होंने ऐसा रूल बॉम्बे लिफ्ट एक्ट में नहीं था। अब मुझे पता नहीं नया कहाँ से लेके आए हैं वो। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि 20 साल बाद लिफ्ट को बदलने की, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा 100% लिफ्ट को रिप्लेस ही करना है आपने। जो चीज खराब होती है लिफ्ट के अंदर वो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मतलब कोई जो इलेक्ट्रिकल सर्किटरी है, वायरिंग है, कंट्रोल सिस्टम है, वो अपग्रेड करने की जरूरत है या मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100% लिफ्ट बदलनी है। और अगर आपकी पुराना कंट्रोल सिस्टम सेफ है, कंप्लाई करता है बीआईएस को, तो कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज इट इज कंप्लाइंग विद बीआईएस देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आप कह सकते हैं इसके बाद भी अगर 20 साल का प्रोविजन है कि हमारी लिफ्ट जो है स्टिल कंप्लाइंग विद बीआईएस। प्रॉब्लम तभी आएगी जब वो बीआईएस को कंप्लाई नहीं कर रही। आपके इनपुट्स आर रियली वैल्यूएबल एंड आई लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। वेलकम सर, वेलकम। Okay, we will take up next question. Mr. Pranav M is on line with his question. Mr. Pranav, please speak up, but only regarding to today's topic, that is policies of the lift. Nothing more, please. Absolutely. Thank you so much, Hemant bhai. Huge and mammoth knowledge, Mr. Arun Agarwal, and quite some insights. Thank you so much. मुझे एक्चुअली ये पूछना था, चूंकि ये पॉलिसी और सब ड्राफ्ट हो रहे थे, बट आपने जब BIS 14665 का मेंशन किया तो अब इसके थ्रू गो थ्रू तो नहीं हुआ है हम लोग, बट मुझे ये पूछना था इसमें पावर बैकअप का भी ऑप्शन है क्या? क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि अगर पावर आउट हो गया तो लिफ्ट जहां पर है वहीं पे सडनली जर्क से रुक जाएगी, तो क्या वो नियरेस्ट फ्लोर पे कहीं भी पहुंच जाए, वो ऑप्शन होता है क्या? सर मैंडेटरी है, मतलब जितने भी लिफ्ट आज की तारीख में हम लोग लगा रहे हैं या पुरानी लिफ्ट भी हैं, हरियाणा में तो उन्होंने एक्ट में डाल दिया तो कंपलसरी हो ही गया ऑटोमेटिकली। बट ऑलरेडी अवेलेबल है हर एक मैन्युफैक्चरर के पास, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, ARD। आज की तारीख में जैसे सर बोल रहे थे कि कुछ केसेस के अंदर आप लीगल प्रोविजंस को इवोक कर सकते हैं, तो अगर किसी लिफ्ट में, नया लिफ्ट में आपको ARD नहीं मिलता, पुराने में तो हो सकता है ना हो, बट अगर नया लिफ्ट है जो कि BIS कोड के आने के बाद लगा है, जब BIS ने ARD मैंडेटरी किया है, अगर उसके बाद वो लिफ्ट लगा है तो आप, ये क्रिमिनल ऑफेंस है ARD ना लगाना नया लिफ्ट में। और पुराने में, जैसे हरियाणा में अगर पुरानी लिफ्ट चल रही थी एक्ट आने से पहले, तो उसमें उन्होंने 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल के अंदर आप पुरानी लिफ्टों में भी इसको लगाइए, लेकिन वो बहुत सी सोसाइटी ने नहीं लगाया क्योंकि फंड्स का प्रॉब्लम था। एक्चुअली मेरे 2010 का जो पिटीशन था, PIL था, उसके पश्चात बॉम्बे, महाराष्ट्र में तो ये लागू कर दिया गया है, मैंडेटरी हो गया है। यस करेक्ट।
ARD. यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिफ्ट की जो एज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये लगाना जरूरी है. ओके, थैंक यू. कैपेसिटी अगर ऑफ हो जाती है तो ये डिवाइस के द्वारा वो जो ऊपर या नीचे जो भी लैंडिंग फ्लोर हो वो वहां पे आके आपका लिफ्ट रुक जाएगा. तो इट हैज बीन नियरेस्ट फ्लोर पे इट रुक जाएगा. तो दिस हैज बीन मेड मैंडेटरी आफ्टर द पेटिशन. We will take up next question by Advocate Prakash More. Mr. Prakash More, are you there? Yes, sir. Please Yes, unmute sir. yourself and go ahead and ask your question, please. Please go ahead, sir. Yeah. Is it compulsory for the 7-story building to have a closed door lift or grill वाला जो shuttering रहता है? It is Grill door or metallic door? हाँ, metallic. It is a full door or the grills. सर जो ग्रिल वाला डोर है उसको टेक्निकली बोलते हैं कोलैप्सिबल डोर. हाँ, कोलैप्सिबल. सॉरी. करेक्ट सर. या तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी. अच्छा सर, वो ऑलरेडी BIS कोड में बैन हो गए हैं. ओके. मतलब बैन होने का मतलब जहां पुराने लगे थे उनको बैन नहीं किया, वो तो चलना चाहिए. ओके. लेकिन अगर उसमें जब उसमें प्रोविजन किया उन्होंने BIS कोड में, वो रिवीजन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कब किया, बट काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल मोर देन 10 years हो गया. बट इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया. सर मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी लिफ्ट इंडिया में अगर लग रही है तो BIS कोड को कंप्लाई करना चाहिए. रिकमेंडेशन है ये BIS का. बट मैंडेटरी कौन कौन से स्टेट में है वो देखना पड़ेगा. मैंडेटरी हरियाणा में हो गया ऑलरेडी. ओके. और मेरे को मालूम नहीं महाराष्ट्र का, अफजल साहब बताएंगे कि वहां मैंडेटरी है कि नहीं है. बट जहां जहां मैंडेटरी है वहां मैंडेटरी है. बट अगर मैंडेटरी नहीं भी है, मैं क्या बोलता हूं आपसे कि आपका जो लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्टर है, लिफ्ट का मेंटेनेंस कंपनी है या लिफ्ट इंस्टॉलेशन कंपनी है, या आप उसको बोलिए कि कंप्लाई करे. ओके. सेकंड क्वेश्चन पड़ेगा उसको. ओके. थैंक यू सर. सेकंड क्वेश्चन. बड़ा कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है बड़ा, ओके, वो तो 100% करते ही है ऑल ओवर इंडिया. ओके. Mr. Arun Agarwal. सर सेकंड क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ, yes, जी go ahead. पूछिए ना सर. ये जो आप बोल रहे हैं अभी कोलैप्सेबल, चलो बंद कर दिया मैंने, लेकिन जो बाहर का डोर है जो कोलैप्सेबल था मैंने क्लोज कर दिया. हाँ, तो उसमें हम लोग खाली विंडो रखते हैं करीबन से 9 इंच और 10 इंच का. जो उसको आपने स्विंग डोर है ना, वो लकड़ी वाला डोर है बाहर जो पैसेज में खुलता है, राइट? हाँ, लकड़ी वाला डोर. करेक्ट. उसको तो स्विंग डोर बोलते हैं. हाँ, सॉरी, उसको स्विंग डोर बोलते हैं. ओके, स्विंग डोर. तो क्या हम उस डोर को हाफ जो ग्लास है और जो छोटा ग्लास रहता है विच यू हैव टू पीप इनसाइड टू सी वेदर समबडी इज देयर और नॉट, राइट, उसको हम ग्लास बड़ा नहीं कर सकते हैं क्या कि इट इज एज पर द विश? टेक्निकली कर सकते हैं, या बहुत जगह करते भी हैं हम लोग. तो क्योंकि हाफ वुडन का रखने का और हाफ पूरा ग्लास, आई थिंक इफ इन द इमरजेंसी अगर वो ग्लास के बजाय हम लोग जो कार्स को विंडो रहता है कि हैमर से मारेंगे तो टूट जाएगा. बट आप किस लिए करना चाह रहे हैं वो? नहीं, फॉर द सेफ्टी, बिकॉज ये जो कोलैप्सिबल डोर्स है, बिकॉज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन वरांडा दैट पैसेज एंड समटाइम्स यू नो समटाइम्स दे ड्राइव टेक अ स्टिक और लकड़ी लेके कुछ कोलैप्सिबल डोर्स में डालते हैं. तो आई वांट टू मेक इट कि हाफ लकड़े का और हाफ ऊपर ग्लास का, सो दैट दे विल नॉट पुट द स्टिक इनसाइड और समथिंग. स्टिक कहां से डाल रहे हैं सर? डोर तो बंद है ना. नहीं, डोर्स बंद है, बराबर है. अगर डोर्स नहीं है, समझे कोलैप्सिबल है, दोनों कोलैप्सिबल है, लिफ्ट के अंदर भी और बाहर भी. अंदर नहीं है, अंदर का कोलैप्सिबल है, बाहर भी कोलैप्सिबल ही है. बाहर वाला भी खुलता है, वो कोलैप्सिबल डायरेक्ट इनटू द पैसेज. नहीं, आप कोलैप्सिबल वो जाली वाला डोर है ना. हाँ, वो अपना ग्रिल जो रहता है ना, आप बोल रहे हो ग्रिल वाला है. कवर नहीं है. कवर विंडो कहाँ से आया? विंडो नहीं होगा ना फिर उसमें. हाँ, उसमें विंडो नहीं रहता है, लेकिन कोई बिल्डिंग में मैंने देखा है कि जो बाहर का डोर रहता है वो उसको एक ही विंडो रहता है छोटा सा. हाँ, वो स्विंग डोर होता है फिर. हाँ, स्विंग डोर जो आप बोल रहे हैं आप. करेक्ट. तो क्या उसको हम लोग हाफ ग्लास और हाफ वुडन करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा? सो दैट द पर्सन अंदर से जो लिफ्ट में खड़ा है उसके अंदर कोलैप्सिबल रखेंगे, तो जो आदमी ऊपर नीचे कर रहा है एटलीस्ट जो स्टेयरकेस में है या पैसेज में है उसको दिखेगा कौन नीचे चला गया. हाँ, कर सकते हैं, ग्लास डाल सकते हैं उसके अंदर, लेकिन आपको अच्छा ये रहेगा कि ग्लास के साथ ग्रिल भी हो, सॉलिड मेटल का ग्रिल हो, जिससे ग्लास कभी टूटे तो कोई हाथ ना दे. ओके. अरुण जी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसके वजह से भी हुए हैं कि
इसके वजह से भी हुए हैं कि वो ग्लास टूटा हुआ रहता है, लोग मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेन करते हैं, वो ग्लास वो लगाते नहीं है, और आपके दिल्ली में भी हुआ है और कई दूसरे स्टेट में भी सर ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। अगेन वो BIS का वायलेशन है। BIS में क्लियर मेंशन है कि उसके ग्लास के साथ देयर हैज टू बी ए सॉलिड मेटल ग्रिल, राइट। वो नहीं लगाते हैं लोग। ओके, ठीक है। डू वी हैव एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चंस? स्वप्ना राउत हैज सम क्वेरी। सर, अभी जो सेशन चल रहा था उसमें बताया गया कि जो स्पेयर पार्ट्स अगर मतलब जो AMC कॉन्ट्रैक्टर है या मैन्युफैक्चरर है, वो सोसाइटी को सजेस्ट करता है कि आपके यहाँ पर ये स्पेयर पार्ट लगने चाहिए, और सोसाइटी उसको एग्री भी करती है कि हाँ चलो आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो पार्ट्स पुराने हो जाने के कारण वो मिल नहीं पाते हैं, तो उस केस में अगर मैन्युफैक्चरर या AMC कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता है और वहां पर अगर एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए क्या रूल्स या रेगुलेशन या लॉज के पॉइंट्स होने चाहिए सर? सपोज द लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर सेज दैट कि मेरे को ये पार्ट मार्केट में नहीं मिल रहा है या अवेलेबल नहीं है, पुराना डिजाइन का हो गया या पुराना हो गया। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि लिफ्ट बंद कर देंगे या लिफ्ट यूज नहीं करेंगे। Yes, हर एक पार्ट का देर है कोई ना कोई अल्टरनेट होता ही है। मान लीजिए अल्टरनेट का कैसे होता है, सपोज फॉर एग्जांपल कि आपने बोला कि पुराना पार्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक रोलर है, कोई सपोज रोलर पुराना डिजाइन का है, ओके। वो नहीं मिल रहा है अभी। तो आपको जब AMC कॉन्ट्रैक्ट देना है, पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि आपने उनको बोलना है कि आपको ये अरेंज करना है। ओके। अगर अरेंज नहीं होगा तो पूरा एक वो यूनिट बदलेगा। ऐसा नहीं है कि वो लिफ्ट बंद कर देंगे, लेकिन वो यूनिट बदलेगा पूरा। उसको अपग्रेडेशन बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। मतलब इतना पुराना हो गया कि स्पेयर पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो ये अपग्रेडेशन में आएगा, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा उसका, पहला बात। दूसरा बात ये कि ये सिचुएशन कब आएगा? ये सिचुएशन तब आएगा जब आपने जो लिफ्ट है ज्यादातर केस में थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, OEM के पास नहीं है। अब ये बात सच है कि झूठ है ये नहीं पता ना हमको, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है मिसगाइड कर रहा है या सच बोल रहा है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये जो केस है वो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है ना, उसी के केस की बात है सर। हाँ, OEM भी करेगा, तो आप OEM को बोलो ना, सोल्यूशन देगा वो आपको। ओके सर। सोल्यूशन देना उसका काम है, वो देगा ही। ओके, थैंक यू मिस स्वप्ना राउत फॉर जॉइनिंग अस। ओके मिस्टर मोहम्मद, एक पॉइंट और भी उभर के सामने आती है, वो ये है कि ऑल द लिफ्ट वेंडर्स, ऑल द लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, AMC contractors also there should be a panel with the energy department for lifts, wherein if they are enrolled, then only they should be licensed to do all this servicing वगैरह and supply of the spare parts. And it is very much there. It is very much there. It is already there. और as per the energy department, मेरा जो last update था, there were about 230 contractors, lift contractors. Okay. In Maharashtra. I said this because I am aware of many AMC vendors, fly-by-night operators जिसको हम कह सकते हैं, वो अपना दुकान डाल लेते हैं, सर्विस करते हैं वगैरह, एंड ऑब्वियसली वो जब फॉलो नहीं करते OEM प्रोसीजर्स या जो SOPs हैं, अगर फॉलो नहीं करते स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तभी ये लिफ्ट के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। जिसके अगर मैंने उसे कहा कि भाई उसके अंदर लॉक ठीक से नहीं हो रहा है, झटका किया तो दरवाजे का लॉक ही खुल जाता है, तो वो लाइसेंस्ड वेंडर शायद उस चीज को ना करे, और जो अनलाइसेंस्ड है वो पक्का कर देगा उस चीज को। मैं यहाँ पे सबको ये बताऊंगा कि अग्रवाल जी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि देयर इज अ चेकलिस्ट ऑफ 43 डिफेक्ट्स, और ये चेकलिस्ट जो है जब आप एनर्जी डिपार्टमेंट को कोई एक इंडिविजुअल भी लिखता है, सिटीजन, कि भाई हमारी लिफ्ट में खराबी है, आप आके इंस्पेक्शन कर दीजिए, तो जब वो लिफ्ट का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो साथ में कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाते हैं, लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को, और लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर को बुला के वो पहले तो फीस कलेक्ट करते हैं, और फीस कलेक्ट करने के बाद इंस्पेक्शन करते हैं। तो 90% ऑफ द केसेस मैंने ये पाया है
कि वो आते हैं लिफ्ट रूम में, जाते हैं, सर घुमाते हैं चारों दीवार की तरफ और बस लिफ्ट इंस्पेक्शन हो गया। जबकि मेरा मानना ये है कि हर एक बिल्डिंग में जहां पे लिफ्ट इंस्पेक्शन होता है तो द कॉन्ट्रैक्टर शुड हैव द चेकलिस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम और उसके तहत वो टिक मार्क करे कि ये हमने चेक किया है और ये हो गया है। तो और ये जो कॉपी है, वन शुड बी विद द एनर्जी डिपार्टमेंट एंड वन शुड बी सर्व टू द मैनेजिंग कमिटी ऑफ एनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो आज के तारीख में 99% मैं कह सकता हूं कि नहीं हो रहा है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को इंस्पेक्शन के लिए बुलाते हैं तो फीस देते वक्त सोसाइटी को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो चेकलिस्ट सामने रखे और उसके मुताबिक वो इंस्पेक्शन करे लिफ्ट का। मोहम्मद साहब, चूंकि आज हम पॉलिसी मैटर्स में बात कर रहे हैं, जी, आपके इसी जी। पॉइंट को आप अगर नोट कर लें, या चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, इट्स ऑल राइट। जी। द पॉलिसी शुड बी सच कि द इंस्पेक्टर शुड नॉट बी एबल टू डू द इंस्पेक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज द ओनर्स इंचार्ज पर्सन। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी का जो भी इंचार्ज पर्सन है, और उन तीनों के सिग्नेचर एंडोर्समेंट उस रिपोर्ट में होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन which should be noted, and the energy department should be told to implement this thing. What will happen is, Mr. Arun Agarwal, please go ahead. सर, ये प्रोविजन ऑलरेडी BIS में मेंशन है, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए कंप्लाई करने के लिए। दूसरी बात, ठीक है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने करना है करेंगे, बट मैं यहाँ जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इंस्पेक्टर कब आएगा, कब नहीं आएगा। मतलब जैसे अफजल साहब कह रहे थे ना कि एक एक जो लाइफ है वो कीमती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक 4 साल के बच्चे को मर गया तो हम बोले कि 4 साल का था, मर गया, बात खत्म हो गई। नहीं, तो हमको क्या करना है कि BIS कोड में चेकलिस्ट दिया हुआ है, ऑलरेडी बना बनाया चेकलिस्ट है, आपको सिर्फ प्रिंट मारना है। मैं लिंक भेज दूंगा। अग्रवाल, मुद्दा आज का कैसा है कि वी आर डाइवर्टिंग our objective of this webinar is to file this writ or PIL in the High Court. Now that you mention about this BIS code, the High Court is not obviously aware of this BIS code, one. Secondly, जो भी state के तरफ से represent करेगा, he will also be a non-technical person. So we have to ready ourselves with the key points in this BIS code, in this National Building Code, etc., and highlight it. few points at least, जैसे BIS कोड में लेटर से 100 पॉइंट्स है, तो जो की पॉइंट्स हमारे समझ में आता है अपने डिस्कशनों के बीच में, कि ये आता है कि इसमें मिनिमम टू मिनिमम 20 पॉइंट्स हम अपने रेट पिटीशन में डालें कि ये BIS के अंदर प्रोविजन है, BIS कोड को इन टोटो उसे इम्प्लीमेंट करना है इन इट्स एंटायरिटी, पर इन चीजों पर खास ध्यान देना है। और अगर हमारे तरफ से ग्राउस रूट लेवल के लोगों के तरफ से अगर हम ये बोल सके कि ये भी और करना है, BIS जिसने भी बनाया वो बाबू लोगों ने बनाया, टेक्नीशियंस ने बनाया, वगैरह वगैरह, उनके अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से बनाया। और अगर लेटर से मिस्टर प्रकाश ये बोलते हैं कि मैं लिफ्ट में घुसने के टाइम पे मुझे ये डिफिकल्टी नजर आई है, तो वी वुड वांट दैट डिफिकल्टी कैन इट बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पॉलिसी मेकिंग, in the safety aspect, in the insurance aspect, or whatever, in our petition before the court. So, हम ये सारे मुद्दे को लेके हमारा ये वेबिनार कर रहे थे। So the existing thing, we will not say कि existing है, और हमें उसे उजागर करना है, हमें उसे बाहर लेकर आना है। आप बोल रहे हो तो हमारे फ्रेंड्स भी सुन रहे हैं, हमें भी जानकारी नहीं है उस चीज के बारे में, मिस्टर मोहम्मद को भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें उसे बाहर लाना है और वो सेम चीज हमें कोर्ट को करना है, ताकि ये प्ले ना हो, इस चीज को नहीं इम्प्लीमेंट करना। इट इज अ माइनर थिंग। One more thing is we should incorporate these rules in the for each society or in the bylaws book. What precautions or what terms condition we should have with the vendor if we are not contracting to the original lift manufacturer, so that every building, every society will have that checklist, so that they can deal with the vendor also, contractor, whoever we are keeping as the AMC. Yes, definitely you can have a clause in your society bylaws
let us say point 1, ensure that the managing committee complies with BIS standards for your lift, and ensures that the AMC vendors or the AMC contractors, Yes, sir. etc., should be appointed only and only from the impaneled. Yeah, that will be better, I think. From the energy department, and so. And then you can of course prescribe your punishments also in the bylaws. कि भाई अगर फला चीज नहीं किया तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर फला फाइन है, या they will be liable for vicariously liable for other things also. Yes, it can be done. मोहम्मद साहब, आप नोट कर ही रहे हो जी. Thank you, Mr. Prakash, for bringing this forward. Thank you, sir, giving me an opportunity. Okay. Anybody else has anything, please? फ्रेंड्स को ये बता दें कि आपने ये वेबिनार इसके लिए ज्वाइन किया है कि आप अपना सुझाव देंगे, बैकग्राउंड में रह के बगैर कुछ बोले अगर आप आएंगे इस वेबिनार में तो इस वेबिनार का मकसद पूरा नहीं होगा. तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन टू गिव एटलीस्ट 1 सजेशन, जैसे मिस्टर प्रकाश मौर्य ने दिया, जैसे स्वप्ना राउत ने दिया, जैसे प्रणव साहब ने दिया, जैसे अरुण राज साहब ने दिया. प्लीज गो अहेड एंड make at least 1 suggestion right now. I'll request everybody सामने आए और कम से कम एक सजेशन तो दे दें. हेमंत भाई, फिर से एक व्यू पॉइंट रख सकता हूँ क्या? ओके, गो अहेड. थैंक यू. जैसे कि आपने ही इनफैक्ट स्टार्टिंग में बताया था कि केज अगर ट्रांसपेरेंसी केज की बढ़ा दी जाए ताकि वो सफोकेशन या ये डर के मारे, एंजाइटी के मारे तकलीफ ना हो इन केस ऑफ पावर आउटेज या फंस जाते हैं. तो अभी अरुण जी तो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फायर कंप्लायंस इट इज नॉट अलाउड, बट सम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक मॉल्स और होटल्स आर डूइंग दैट. बट उनका क्या है कि पीछे का पार्ट जो है वो जनरली ट्रांसपेरेंट रहता है, वहां पे ये नहीं होता, कोई सिविल वर्क एज सच नहीं होता, ताकि वहां से पूरा दूर और बाहर देखा जा सकता है. अपने सोसाइटीज में जो है ये शायद थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो पीछे का 3 साइड जो है वो कंप्लीटली बंद है, क्लोज्ड है. तो आगे का जो सिर्फ दरवाजा जो है हमारा, वो दरवाजा ट्रांसपेरेंट रखने का अगर कोई प्रोविजन किया जाए टफन ग्लास से या फाइबर ग्लास से जैसे भी है, और वो चीज चेंज कर पाते हैं अगर हम BIS में, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी. यस सर, दैट नीड्स टू बी डन. हेमंत जी, मुझे बोलना है. नंद किशोर, प्लीज गो अहेड. Sir, thank you, sir. Good evening. This topic is very good, and I am thankful for Mr. Hemant Agarwal ji, Mohammad Afzal ji. जो PI जो आप फाइल कर रहे हैं ना, उसमें 2 पॉइंट मैं एज ए सजेशन दे रहा हूँ कि जैसे अभी तो लिफ्ट की जो व्यवस्था है वो 4थे माले तक नहीं होती, 4th फ्लोर तक, मतलब वो बोलते हैं कि 4th फ्लोर तक कोई लिफ्ट की जरूरत नहीं है. बट नाउ डेज पीपल आर, मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको बहुत 4थे वाले पे या 4th फ्लोर पे जाने में बहुत दिक्कत होती है. आफ्टर 2nd फ्लोर और बहुत कम लोग मतलब चढ़ पाते हैं, है ना. और इसका कारण से जो फ्लैट की जो कीमत है वो भी कम होती है 3rd 4th फ्लोर पे. तो मेरा एक सजेशन ये है कि ये इट शुड बी लेफ्ट टू द सोसाइटी कि वो लिफ्ट पहले 4थे वाले की बिल्डिंग तो लगाएं, 7 वाले की तो है बिल्डिंग लगाएं और 10 वाले की बिल्डिंग तो लगाएं. मतलब इट शुड बी लेफ्ट टू द सोसाइटी. और उसमें ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि वो मतलब ऐसा कोई बंदिश नहीं हो कि आप 4थे माले तक लिफ्ट नहीं लगाएं तो चलेगा. नहीं, जैसा कि अपना एनर्जी डिपार्टमेंट कहती है कि परमिशन तो वो देते हैं, बट यू विल हैव टू इंस्टॉल द लिफ्ट एट योर ओन एक्सपेंस. हाँ, तो सोसाइटी खर्चा करेगी ना उसका तो लगाने का. और दूसरा जो 3 या 4 फ्लोर के जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें लिफ्ट नहीं होती है, तो अगर सब अगर मतलब इन्हें मिल जाए और वो इंस्टॉल करना चाहें तो देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉ व्हिच स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट. अच्छा. और दूसरा मेरा एक सुझाव ये था कि अभी हमारी बिल्डिंग के अंदर एक 45 इयर्स लेडी लिफ्ट में अटक गई और करीब शी वाज स्टक फॉर 1 आवर. वो तो लिफ्ट में क्या था, वो जो ग्रिल थी ना, वो ग्रिल की लिफ्ट थी, मतलब वो जो उसमें. तो मेरा सजेशन ये है कि जो सोसाइटीज जो होती है, जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, उनमें जो अभी जैसे अरुण जी बता रहे थे कि मतलब ग्रिल वाली सोसाइटी, ग्रिल वाली जो लिफ्ट है वो बैन हो चुकी है. लेकिन मेरा मानना है कि सेफ्टी पॉइंट के लिए ये जो ग्रिल वाली जो है, जो कोलैप्सिबल जो है,
हाँ वो भी मतलब प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने तो एग्जांपल, मेरे 1 महीने पहले वो लेडी शी वाज स्टक फॉर 1 आवर एंड शी सेव्ड बिकॉज इट वाज ग्रिल लिफ्ट, और वो हमको देख रही थी, हम उसको देख रहे थे, और इन हाउ वो हमने उसको मतलब जुगाड़ करके उसको निकाल लिया। तो और दूसरा ये भी था कि जो रात के अंदर जो है लिफ्ट मैन जो है, जैसे इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें मतलब किसको बुलाएं? जो लिफ्ट मैन जो है, वो जो लिफ्ट मैकेनिक है, उसको तो आने में 1 घंटा लगेगा, तब तक तो बेचारा वो आदमी जो फंसा पड़ा है वो मतलब उसमें बढ़ जाएगा। तो मेरा एक सजेशन ये है कि ये जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसको एक ऐसा करना चाहिए कि भाई 24 आवर्स के लिए कोई किसी वॉचमैन को या किसी मतलब कमेटी किसी को भी मतलब इट शुड बी अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। मतलब लिफ्ट तो कभी भी मतलब स्टक हो सकता है, तो आदमी की जान नहीं जाए, तो ऐसा कोई व्यवस्था, ट्रेनिंग टू द वॉचमैन, ट्रेनिंग टू द सम एक्सपर्ट, वो ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा एक बंदिश लगाना चाहिए मैनेजिंग कमेटी पर, सोसाइटी पर, कि भाई अगर आपने सोसाइटी बनाई है तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप देखिए, जो मेरा पिटिशन था 2010 में, और ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने ये भी कहा था कि PWD शुड क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि लोगों को जानकारी हो कि भाई अगर अटक जाए तो क्या करना है। तो ये चीज उन्होंने नोट की थी, और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको मतलब यानी बताते हैं कि भाई अगर कोई अटक जाए तो क्या करेंगे, और बिफोर द कॉन्ट्रैक्टर कैन रीच यू। तो आई डोंट नो कि पूरे तरीके से ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं सर, वो हमारी बिल्डिंग, माय बिल्डिंग इज 50 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग, आई एम इन मनीष नगर, फोर्ट बंगलो, अंधेरी वेस्ट, और हमारे सेक्रेटरी, चेयरमैन, सब लोग वहाँ पे आ गए, किसी को कुछ नहीं मालूम कि कैसे कैसे किया जाए। फिर वो जुगाड़ करके कोई सरिया लाया, उसको लिफ्ट में डाला, तो लिफ्ट चली, तो मतलब वो लेडी बच गई। तो मेरा कहने का मतलब किसी को मतलब कोई नॉलेज नहीं है, किसी को ट्रेनिंग नहीं है। आपने बिल्डिंग तो बना दी 50 माले की, 20 माले की, लेकिन कोई चलाने वाला, उसको लिफ्ट को देखने वाला कोई आदमी, मतलब मेरी बिल्डिंग में तो मुझे लगा नहीं, इट इज 50 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग। तो मेरा कहने का मतलब कि इस तरह की प्रोविजन होना चाहिए कंपल्सरी। राइट सर, may I answer this? हाँ सर, प्लीज गो अहेड। सर, सॉरी बट ये जो आप बोल रहे हैं, सर का नाम मैं नहीं पकड़ पाया, क्या नाम था सर का? भारतीय, मिस्टर भारतीय, नंद किशोर भारतीय। अच्छा, नंद किशोर जी। सर, प्रोविजन ऑलरेडी है वहां पर, अगर कोई भी लिफ्ट कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि जब भी मेंटेनेंस करेगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको लिफ्ट के अंदर 2 प्रोविजन होते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, जो कि अपने आप अगर बैटरी बैकअप है, बैटरी बैकअप से लिफ्ट को नियरेस्ट फ्लोर पे ले आएगा पावर फेलियर के टाइम में। अगर वो नहीं काम करता किसी वजह से, या लिफ्ट में इंस्टॉल नहीं है, तो हर एक लिफ्ट के अंदर एक मैनुअल रेस्क्यू मेथड ऑलरेडी मैंडेटरी है। हर लिफ्ट में होता है, वो हर लिफ्ट में होना चाहिए, और वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, रेस्क्यू ट्रेनिंग होती है। मैं अपनी एकेडमी के अंदर भी उसकी ट्रेनिंग देता हूं, और ये मैंडेटरी है ये भी ट्रेनिंग देना। लिफ्ट कंपनी जो है, लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो आप डेजिग्नेट करेंगे कि इस आदमी को हमारे को ट्रेन कीजिए, चाहे वो गार्ड है या वॉचमैन है या कोई इलेक्ट्रीशियन है बिल्डिंग के अंदर, या कोई और भी है, तो 2 लोग 3 लोग आप ट्रेनिंग लीजिए। इमीडिएटली आप इनको बोलिए कॉन्ट्रैक्टर को कि हमको ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे रेस्क्यू करना है सेफली। उसका एक पूरा प्रोसेस है, रिटर्न डाउन प्रोसेस है, उसका एसओपी है पूरा। तो वो एसओपी फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, 2007 से हमारे पास कोने के लिफ्ट है, मगर अभी वो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद हमने अभी वो एएमसी किसी भी दूसरे पैनल कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, वो ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज है। बट अभी एआरडी का जो सवाल आया, तो बोलते हैं कि अभी एआरडी बहुत पुराने हो गए ये कंपनी के, और अभी मुझे ये अगर डालना है तो अभी दूसरे डालने पड़ेंगे, अभी कोने से भी ये नए नहीं मिलेंगे, ये सेम मॉडल तो नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ अलग लगाना पड़ेगा।
या हम लोग कुछ डेवलप करके लगाएंगे, तो क्या ये उसको मैच करेगा और ये हमारे BIS के रूल्स के हिसाब से होगा क्या? क्योंकि ये कहें कि अगर ये जाएगा तो 1 लाख जाएगा, ये मैं आपको 50 में ही करके दूंगा वगैरह वगैरह, तो ये कमर्शियल उसके रीजंस क्या है वो तो मुझे नहीं ऐसे पता लगेगा जब तक मैं थोड़ा उसको स्टडी नहीं करूंगा, बट ये इजीली पॉसिबल है। अपग्रेडेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। कोई भी सिस्टम अगर खराब है तो उसका दूसरा अल्टरनेट हमेशा होता है एलिवेटर कंपनीज के पास। मैंने कोई एलिवेटर कंपनी नहीं देखी कि मैं किसी को बोलूं कस्टमर को कि सर ये पार्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। 35-40 साल से तो किसी को बोला नहीं हमने ऐसा। अगर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो हम कोई हमारी जिम्मेदारी है ना, कस्टमर या जो सोसाइटी का है उनको कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम ही उनको बताते हैं कि सर ये पार्ट अब नहीं अवेलेबल है, उसकी जगह आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरे कंपनी का भी चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू मिस्टर संजीव। मिस्टर श्रीनिवास कामले, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, अपने जो अभी सजेशंस और पॉलिसी के बारे में बोले, मैं जब कमिटी में मेंबर था तब PWD का इंस्पेक्शन के लिए आए थे और हमें सजेशंस दिए गए थे कि अंदर लिफ्ट के टाइम मेंटेनेंस करने के लिए एक ग्रिल रहता है। ARD का भी हमें बोला था ये, और हमारे पास फंड नहीं था तो हमने फंड निकाल के वो कर दिया था। लेकिन अभी मैं कमेटी में भी नहीं हूँ, अभी नया कमेटी आया और जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला है कि पुली और जो वायर रोप है वो थोड़ा डैमेज हो गया है, वो रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो नया कमेटी बोल रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, लेकिन लिफ्ट तो सब यूज कर रहे हैं वैसे भी। तो ये पॉलिसी जब बनाएंगे तब उसमें एक ये भी होना चाहिए, जो ऑडिट होता है जैसे अपना अकाउंट का ऑडिट होता है वैसा लिफ्ट का भी जब कमिटी चेंज होता है या फिर उसमें क्या क्या निकले वो ऑडिट होना मांगता है और उससे कमिटी को भी वो क्लियर करना चाहिए। जैसे मिस्टर प्रकाश मोरे, एडवोकेट प्रकाश मोरे साहब ने बोला हाँ, कि सोसाइटी के बायलॉज में कुछ क्लॉजेस इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, तो इस संदर्भ में आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर प्रकाश मोरे कि वो 8-10 लाइन का अपना पॉलिसी इश्यू बना के मिस्टर मोहम्मद साहब को ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, तो वी विल ऑल्सो चेक आउट दैट कि वो अपने पिटिशन में हम कहां तक उसे इनकॉर्पोरेट कर सकें। थैंक यू मिस्टर श्रीनिवास। सर मैं पूछ सकता हूँ सवाल? सर मिस्टर जिंदाल साहब बोलिए। हाँ जी सर, मेरा अग्रवाल जी से सवाल था कि सर ये अभी स्विंग डोर परमिटेड है, जैसे आपने बोला कोलैप्सिबल ग्रिल परमिटेड नहीं है, तो अभी BSI कोड में क्या स्विंग डोर परमिटेड है? सर स्विंग डोर परमिटेड है, लेकिन कोलैप्सिबल डोर भी नया लिफ्ट के जो लगाएंगे उसके अंदर बैन किया है। पुराना जो एक्ट आने से पहले या जो वो प्रोविजन आने से पहले जो चल रहे हैं वो बंद नहीं किया, मतलब उनको नहीं हटा सकते एक साथ। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि नई बिल्डिंग में समझो इंटरनल जो लिफ्ट का डोर है वो भले मेटेलिक डोर हो, लेकिन जो बाहर का डोर होता है पैसेज में वो अगर ये स्विंग डोर हो तो क्या है कि यहाँ पे कई नई कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग्स जो है वहां पे एक फ्लोर में 3-3, 4-4 फ्लैट है। तो क्या होता है छोटे बच्चे ना पैसेज में खेलते हैं। अब क्या होता है कि जो घर से निकलता है वो लिफ्ट का बटन दबाएगा, उसको लगता है लिफ्ट थोड़ी देर में आएगी, वो तुरंत नीचे उतरना चालू कर देता है। तो जब तक लिफ्ट आती है ऑटोमेटिकली दरवाजा खुलता है और कभी कभी छोटे बच्चे लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि स्विंग डोर लगा हो बाहर की तरफ जो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, जब तक लिफ्ट ऊपर ना आए तो ही लॉक रिलीज होता है। तो क्या ये बच्चों की सेफ्टी के लिए जरा ठीक रहेगा क्या ये स्विंग डोर अभी अगर जो नई बिल्डिंग के लिए बैन किया है, क्या ये रिक्वेस्ट कर सकते फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, नॉट फॉर कमर्शियल बिल्डिंग? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पैसेज में खेलते हैं, कभी लिफ्ट का दरवाजा खुला हो गया ना, स्विंग डोर बैन नहीं है, स्विंग डोर लग सकता है ना? करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। Mr. Arun, I will like to ask you one question, Mr. Arun Agarwal. Yes, sir. जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्या होता है कि लिफ्ट में दोनों ही दरवाजा कोलैप्सिबल हो। आई हैव सीन सेवरल लिफ्ट, मैं अपने बचपन से देखते आ रहा हूँ कि दोनों अंदर का भी दरवाजा कोलैप्सिबल है और बाहर का भी जी। अभी इसमें अंदर बाहर दिखाई भी देता है, कुछ इंसिडेंट हुआ तो आवाज भी बाहर पहुंच जाती है, पता भी चल जाता है लोगों की कौन कहाँ क्या पोजीशन पे है। इसको बैन करने का क्या मतलब था? वाज इट सेफ्टी रीजंस और लाइक फॉर व्हाट इट वाज बैन टोटली?
सर दोनों है। पहला तो सेफ्टी है ही ऑब्वियसली। बहुत सारे कुछ इंसिडेंट हुए, केसेस हुए जहां पर बीच में हाथ आ जाता है ना उसमें, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। ओके। बट परमिट मी टू से दैट कि वो बहुत सारा उसके पीछे जो बैन करने का रीजन था, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कमर्शियल रीजंस भी रहे होंगे, जो क्योंकि पुरानी लिफ्टें लगी हैं बहुत सारी कोलैप्सिबल डोर की इंडिया के अंदर, विशेष रूप से मुंबई के अंदर बहुत सारी हैं। तो अब जब वो बदले जाएंगे या कुछ उनको चेंज करना है, कुछ नया डोर लगाना है, तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नया डेवलप होगा। तो वो भी शायद मेरे को लगता है कि रहा होगा जरूर दिमाग में किसी के। So there were other type of considerations also involved in removing both the collapsible doors in the lift. आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है सर जी? सर अब जरूरत नहीं है कोलैप्सिबल डोर की नई लिफ्ट के अंदर। कम से कम अगर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोगों को ये वहम रहता है कि जो ऑटोमेटिक डोर है या जो इनक्लोज डोर है उसमें सेफ्टी नहीं है, इसलिए वो हवा नहीं आ रही या दिख नहीं रहा या ऐसा कुछ लग रहा है। बट ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस करी जाएगी लिफ्ट की तो वो फंसेगी नहीं until unless there is a पावर फेलियर। तो और एक और बात जो बहुत क्लियरली हमको समझनी है कि जो ARD है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस है, वो सिर्फ पावर फेलियर के टाइम काम करेगा। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, पावर नहीं गया लेकिन लिफ्ट रुक गया किसी और फॉल्ट की वजह से, कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुआ, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ, तो ARD काम नहीं करेगा। Thank you, sir. We have one request for by Mr. Mustaq Sheikh. Mr. Mustaq Sheikh, if you are there, what is your suggestion, Mr. Mustaq Sheikh? My suggestion is that just now somebody किसी ने बताया कि ये bylaws में incorporate होना चाहिए, जैसे कि means this responsibility should go on management basis. But what I suggest that this is okay, but instead of incorporating it in only bylaws, why there should not be a provision like a lift audit, like we have incorporated structural audit, fire audit in our cooperative act, and there should be some machinery to hold responsible the persons who are responsible for such accidents, including the OEM, original equipment manufacturer, because I feel that doing some preventive measures on the management committee or any other or preventing actions, the original equipment manufacturer who is selling us this product, he should be held responsible by act itself. That should be incorporated in our PI. Mr. Mustaq, I will just add to it. I'll add to it. What happens is in the society bylaws, which are actually guidelines for the society. For example, myself, I know something about BIS. I know something about National Building Code. I know something about MRTP. I know something about BMC, Fire Act, etc., etc. But then I cannot say ever that I know everything. So similarly, managing committee will not know about BIS, will not know about fire safety standards, etc. But bylaws में अगर हम कुछ clauses डाल दें, maybe 1, maybe 10, मैनेजिंग bylaws छोटी सी किताब है, मुश्किल से 35-40 पेज की किताब है, आप डाल दें, लाइबिलिटी फिक्सिंग में मदद हो जाती है। अगर सेक्रेटरी को ये बोला जाए, चेयरमैन को ये बोला जाए, MC को ये बोला जाए, मैनेजिंग कमेटी दैट इज, कि भाई बायलॉज में ये प्रोविजन है, सारे मेंबर्स भी रीड कर रहे हैं उस चीज को। बायलॉज की किताब 50-100 रुपए की आती है, अगर मेंबर्स भी रीड कर रहे हैं तो एक चीज ये होता है कि मेंबर बोल सकता है कि सर आपने लिफ्ट BIS स्टैंडर्ड से ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही, बायलॉज में तो लिखा हुआ है। सर आपका AMC वेंडर एम्पैनल्ड है या नहीं है, वो भी बायलॉज में लिखा है। तो कुछ कुछ पॉइंट बायलॉज में इनकॉर्पोरेट करने में देयर इज नो लीगल इन्फर्मिटी, इट इज परफेक्टली ऑलराइट टू डू सो, and it will be on the contrary helpful also. No, sir, that is not my actually objection for that. We are incorporating so many things in bylaws, and implementation in bylaws is a managing committee responsibility. And if the managing committee fail, we rush to the deputy registrar, and deputy registrar take the cognizance, or sometimes he does not take the cognizance, or he says that you go to the cooperative court. Yes, sir. Then we have to knock the doors of the court. Yes. In that case,
there should be a provision in our Cooperative Act also for such type of failures and improvements. Because okay, in Mr. my Mushtaq, then experience, I will request you to prepare a few points, maybe 8 line, 10 line, 20 line, 50 line on okay, the probable policy points and email it to Mr. Mohammad Afzal or to even Yes, sir. WhatsApp to me also. Mr. Mohammad का email ID और मोबाइल नंबर अपने वेबिनार की इनवाइट में हम पब्लिश करते हैं हर समय जी सर, एंड मैंने आज के चैट बॉक्स में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है. तो आप अभी जो बोलना चाह रहे हैं उसको शांत मन से Yes. बैठ के कोशिश कर लें, जितना हो सकता है आप कर लीजिए. ओके सर. So Thank you. we are actually compiling data for today, like today's webinars. We will be compiling so much data and then concising it for the High Court matter. Thank you, Mr. Mushtaq, for joining in. Yes. Thank you, sir. Hemanji, I would further request all members who are present in this webinar कि अगर उनको आफ्टर थॉट आता है तो वो पॉइंट्स को भी वो बुलेट पॉइंट्स में डाल के with a brief, email it to me and WhatsApp to you. तो क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज को कर पाएंगे. Mr. Arunes, please go ahead. Please go ahead, sir. Sir, my only request is that, see that, yes, there are all these bylaws, Society Act, PWD, Lift Act, all these things. But we have seen that as many rules we put, the more difficult it is going to implement anything practically. So I think we should have less rules, a very clear statement like, okay, if the society has abided by the Lifts Act, it is understood that it will abide by the BIS code and the empaneled code. If the Lift Act itself is not put that, and then I think this multiplicity of, compliances is what is leading to less compliance. And so we should have very clear, okay, how can a lift manufacturer be held liable 10 years later for what happened to his lift which is in the society? No manufacturer will install the lift for existing society then. They will run away. And it is basically the society which is actually going for cheaper and cheaper AMC people. And in the end up then, ultimately it is the buyers beware. So I think somewhere it has to be very clear and simple and short, specific. If we put so many acts like Society Act, bylaws, Maharashtra Cooperative Society Act, that act, this act, Lift Act, PWD, BIS, how will common society managing committee member comply? He will be reading more laws than checking the lift. So I think Mr. Arun, I'll come back to you after 5 minutes. Mr. Mohammad Afzal has something to say. In my practical experience of installing we had tried to install a lift many years back. And we had got, like I was saying, the old society, we need one single window, like it says, because in many buildings, it is not just the lift is done by the lift person, the civil work is done by the civil person, then the safety is both. If you have one person, one nodal this thing and say, okay, then we will also comply. If we have to run after 10 different parameters, then obviously we will fall short. Human tendency is to not comply. And we are making it more and more to comply. And then we are saying people are not complying. Okay, Mr. Arun, I will definitely answer your questions. Mr. Mohammad Afzal, our committee president, wants to say something. After that, I will answer you. And then we will conclude today's webinar. अरुण जी, अगर आपने सोचा है कि आपको चर्चगेट जाना है, ठीक है, तो ये रहा एक्ट. कैसे जाना है वो डिफाइंड होता है रूल्स में कि आपको कौन सा तरीका, आपको रोड से जाना है, बाय एयर जाना है, पैदल जाना है. तो ये एक सिस्टम बना हुआ है. तो बेयर एक्ट जो है वो सिर्फ आपको कहता है कि आपको यहाँ से चर्चगेट जाना है, मगर कैसे जाना है तो वो सारी चीजें रूल्स डिफाइन करती है. That's what I want to submit. Okay. So I will just put in few words for Mr. Arunes, and then we will conclude today's webinar. But before I do that, I would definitely thank Mr. Arun Agarwal from Delhi for imparting all his technical language to us, technical inputs to us. And also I will request him to join in our future webinars
on the lift matter and help us out in as much way that is possible. It is a request, Mr. Arun Agarwal. Thank you, sir. Sir, most welcome. कोई problem नहीं है. Anytime I am available. कोई there is Mr. Arun S, आपके लिए जवाब ऐसा है कि आप एक फ्लैट सिस्टम में रहते हो. अब फ्लैट के अंदर आपके कितने ढेर सारे यूनिट्स हैं. एक एसी यूनिट भी है, एक रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, यूटेंसिल मशीन है, लाइक सीविंग मशीन भी है, और मिक्सर ग्राइंडर भी है, और फर्नीचर्स भी है, और टेलीविजन भी है, और वीडियो भी है, वगैरह वगैरह. सो देर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड योर हाउस which you are managing. Similarly, there are such external forces also which you have to manage. अभी एक्सटर्नल फोर्सेस में कैसे आ गया? अगर आप बिजनेसमैन में हो तो कितने ढेर सारे परमिशंस लगते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री यूनिट के लिए या आपके ऑफिसेस के लिए. फिर वो जीएसटी भी आ गया, फिर वो इनकम टैक्स भी आ गया, फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स भी आ गया, वगैरह वगैरह. तो somehow I will say कि it is not proper to sensitize ourselves for all these things. We have to go by it. So there is no other alternative. अगर आप उसे कहेंगे कि 1 पॉइंट विंडो करें ये सब चीजों के लिए, तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि सोसाइटी के बैलेंस शीट में ही अगर आप देखोगे तो देयर आर मोर देन 25 हेड्स. एक वो स्टेशनरी वाला भी हेड है. तो अगर आप स्टेशनरी में कंप्यूटर का प्रिंटर पेपर वो 20 GSM का ले आओगे अगर आप, तो वो फटेगा. तो आप उस चीज को आप प्रिंट नहीं कर पाओगे, उसका इंक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अगले साइड के पेज में. वो बेसिक चीजें आपको करनी है. इसी तरह सेम टू सेम लिफ्ट का भी वैसे ही है. आपके सोसाइटी में अगर एसटीपी प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसका भी अलग पैरामीटर्स होते हैं. लिफ्ट का अलग है, गार्डन का अलग है. देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स टू इट एक्चुअली. सो फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स. डू नॉट सेंसिटाइज योरसेल्फ. अपने जो बहाव चल रहा है उसमें बहते जाना ही हम लोगों का काम है. Before concluding, I will request Advocate Fatima Fauzdar, who is going to be spearheading this particular writ petition or PIL in Mumbai High Court, to speak a few words before we conclude today's webinar. Fatima ma'am, are you there? Yes, sir. Good evening, sir. And thank you, Mr. Arun Agarwal. Your subject matter of the topic, you're very well versed with the subject matter, and it has been a very good way that you have presented it. In fact, there were so many doubts. I spoke on this topic last week, and then from there on, this whole process has started with Mr. Afzal taking it forward by means filing another PIL and everything. But the points that you have covered and the way you have spoken about BIS code, NBC code and everything. So I think it is these things which has to be just brought forward before the legislature and the lawmaking authorities, so that the implementation is done in the right manner and we can save so many lives and accidents rather. Because all the lift accidents go as technical faults, so nobody takes the liability for it. And thanks to Hema sir for providing this platform, of course, and the initiative by Mr. Afzal. Looking forward to the concluding parts of this webinar till we reach the final destination. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Fatima ma'am. Thank you. Once again, thank you, Mr. Arun Agarwal, and our committee president, Mr. Mohammad Afzal, and all our other participant friends for the same. Now, with the permission of our participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this webinar on lift policy making. Next time we will be having another subject, which we will duly publish it during the next webinar invite. Wishing all our friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody. And Thank you, good sir. night. Bye-bye. Thank you.